Election Yatra is in battleground Pune. This region has been dominated by the Pawar family for decades. Pune has remained a fortress of the Congress and the undivided NCP for a long time. But then the NCP witnessed a split. Despite the split, Sharad Pawar managed to pull off a surprise in the 2024 Lok Sabha elections. But this is the first time that Pune is facing the assembly elections after the split in the NCP and the Shiv Sena. The Western Maharashtra region has traditionally been a bastion for the undivided NCP and the Congress. However, since 2014, the BJP, buoyed by Modi's influence, has been challenging the Congress-NCP combined. In the 2019 assembly polls, the undivided NCP won 27 seats, the BJP took 20 seats, Congress secured 12, another 5 went to the undivided Shiv Sena. But with the split in the NCP camp appearing to affect fortunes for the Mahayuti in the Lok Sabha polls, the NDA is looking to consolidate the Hindu vote in its favor. Both Prime Minister Narendra Modi and Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, have issued a call to the Hindus to unite. This after Devendra Fadnavis, remember, spoke about vote jihad and how it helped MVA on at least 14 seats. He said the manipulation of the minority votes hurt the Mahayuti. The Prime Minister is in poll-bound Maharashtra now. He kick-started his campaign and once again issued the clarion call. आदिवासी की पहचान, जनजातीय समाज की पहचान, शेड्यूल्ड ट्राइब की एकता, इसको तोड़ने में कांग्रेस लगी हुई है। आदिवासी जातियों की एकजुटता कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहाती। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहें, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। For the BJP and the Mahayuti, the challenge is to increase its margins in the Western Maharashtra region and further their gains from 2019. One such leader who's in the thick of action to amplify the BJP's cause is this man, Muralidhar Mohol, the Minister of State for Civil Aviation in the Modi government and also only the second Union Minister from Pune. Everybody is quite busy campaigning for the Maharashtra elections, and we managed to get some time here over breakfast with the Union Minister. We have MOS Civil Aviation and Corporation, Muralidhar Mohol joining us. He's also the General Secretary of the BJP. और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्टर्न महाराष्ट्र की दी गई है, यहाँ पर बीजेपी की कैसा परफॉर्मेंस रहेगा 2024 में, ये बहुत बड़ा सवाल। वैसे तो एक कार्यकर्ता के तौर पे जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसी को निभाना है। यानी कि पिछले 30 साल से मैं कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं और समय समय पे जो जिम्मेदारी दी जाती है वो निभानी है, उस पर काम करना है। तो अभी इलेक्शन का माहौल है। 20 तारीख को महाराष्ट्र की अभी इलेक्शन हो रही है। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में कुल 58 सीटें हैं। हम सब अलायंस में ये 58 सीटें लड़ रहे हैं। तो पूरे 58 सीट का थोड़ा कैंपेनिंग करना है, वहाँ जाना है। संगठन हमारी महायुति का गठबंधन है, सब कार्यकर्ता नेताओं को साथ में काम एक साथ करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रवास है, स्ट्रैटेजी है, सभाएं है, सम्मेलन है, ऐसे सब चल रहा है।
चुनौती है क्या वेस्टर्न महाराष्ट्र में, क्योंकि एक समय था जब कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा था, फिर जब कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ मेरे ख्याल से 90s के एंड में, तब इसको एनसीपी का गढ़ कहा जाने लगा, क्योंकि शुगर केन मिल ओनर्स और सारे लोग जो है वो शरद पवार को सपोर्ट देने लगे। आपको लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी वेस्टर्न महाराष्ट्र को वापस ले लेगी? नहीं, 2019 में भी वेस्टर्न महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी। हमारे कुल 19 विधायक यहाँ से चुन के आए। आज भी हम अलायंस का अगर देखते हैं, हम शिवसेना, राष्ट्रवादी, तो आज भी 58 से 42 सीटें आज हमारी हैं। तो मुझे नहीं कोई चैलेंज नहीं लगता, हम आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि पिछले 10 साल से मोदी जी ने जो महाराष्ट्र को जो उनकी गवर्नमेंट ने जो विकास की योजनाएं दी है, बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की है। 2.5 साल से यहाँ पे महायुति की गवर्नमेंट जो काम कर रही है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई चैलेंज है। आसानी से हम इस बार तो 42 से आगे भी जाएंगे। लोकसभा में हमने देखा अम्बेडकराइट वोट्स और मुस्लिम वोट्स का कंसोलिडेशन हुआ, जिसका फायदा सेना, यूबीटी और पूरी एमवीए को हुआ। आपको लगता है कि कोई ऐसा कंसोलिडेशन इस बार भी होगा, या मुस्लिम्स आपके साथ नहीं है, या इस तरह की कोई नैरेटिव है फील्ड पर? मुझे लगता है कि समाज का हर वर्ग हमारे साथ है। मैंने अभी जिसका जिक्र किया कि मोदी जी की जो योजना है, उसे कोई जात धर्म नहीं देखी है। जो उसके लिए जिसका होना जरूरी है, उसे हर एक व्यक्ति को दिया है, उसकी जात देखकर नहीं मिला है। और मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि तिहरी तलाक हो, हमारे जो महिला है वो तो बहुत खुश है ना, वो बीजेपी को वोट कर, क्योंकि कितने सालों से ये सख्त कानून उनके सर पे था, वो उसके छुटकारा मिला है। वो बोर्ड के जमीन का जो विधेयक हमने बिल लोकसभा में लाया, उसके वो भी ऐसे है ना, वो धर्म के नाम पे, यानी कि कुछ न कुछ सोशल एक्टिविटीज के लिए जो जमीन मिल रही थी, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर दिया था। तो आपके खिलाफ नहीं जाएगा वक्त? बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि हम कोई समाज, धर्म, जात देखकर काम नहीं कर रहे। हम सबको एक समान देखकर हर एक व्यक्ति को, गरीब का उद्धार करें, उसका जीवन सुखकर करें, अच्छा बने, और मुझे लगता है कि समाज सोसाइटी को आगे लेके जाए, यही सोचकर हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोग काम के साथ रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई जात धर्म लेके वोट करते हैं। इलेक्शन यात्रा की सवारी पर हम वापस आ चुके हैं और मिनिस्टर साहब भी हमारे साथ हैं। एक मराठा का इशू बहुत बड़ा है, आप खुद भी एक मराठा फेस हैं। जो मनोज जारंगे पाटिल ने यू टर्न लिया, उसका कितना असर होगा आपको लगता है, और किसके पक्ष में? नहीं, मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र है हमारे देश में, हर किसी को चुनाव लड़ना या न लड़ना तो वो उसका खुद की मर्जी का पार्ट है। तो मुझे लगता है उन्होंने पहले ये तय किया था कि इलेक्शन लड़े, अभी उन्होंने कहा कि वो नहीं लड़ रहे। मुझे लगता है कि वो तो उन्हें पता है कि उन्होंने ये डिसीजन पहले क्यों लिया, फिर क्यों बदला। लेकिन ये एक बात मैं साफ करना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा कि 2014 से 19 तक माननीय देवेंद्र जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। इससे पहले भी महाराष्ट्र में 40-50 साल पहले से ये मांग थी कि मराठों को रिजर्वेशन दिया जाए। तो उसके बाद भी आज जो रिजर्वेशन पे बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जो तो वो तो 4 बार यहाँ सीएम बने हुए। माननीय पवार साहब तो 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो भी नहीं दे सके ना मराठों को आरक्षण। दिया तो देवेंद्र जी ने दिया था, पहली बार इस महाराष्ट्र में मराठा को जो रिजर्वेशन दिया वो देवेंद्र जी ने दिया था। वो हाई कोर्ट में भी कायम करा, वो सुप्रीम कोर्ट में चला, लेकिन जब गवर्नमेंट बदली, उद्धव ठाकरे साहब की सरकार आई, तो रिजर्वेशन चला गया। तो मुझे लगता है कि ये विश्वास महाराष्ट्र के मराठों को है, मराठा समाज को यह है कि अगर कोई रिजर्वेशन दे सकता है तो वो महायुति की गवर्नमेंट ही देगी। अभी भी जो माननीय जारंगे जी का जो मांगे हैं उस पर बहुत बड़ी गंभीरता से हमारी सरकार सोच रही है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब है, अजीत दादा, देवेंद्र जी, ये सब नेता जो हमारे नेतृत्व जो है उस पर सोच रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर काम ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र के हर एक मराठा को विश्वास है कि जिन्होंने 50 साल कुछ नहीं किया, राजकर्ता जो थे जिन्होंने राज किया इस महाराष्ट्र पे, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन करने वाले तो यही लोग हैं। इसलिए इस राज्य में जो मराठा है वो हमारे साथ है, उनको विश्वास है कि हमें रिजर्वेशन अगर कोई दे सकता है तो महायुति देगी।
एनसीपी टूटी, शिवसेना टूटी, इल्जाम आपकी पार्टी पर लगा कि आपने तोड़ा और अपने साथ जोड़ लिया। नहीं, मुझे लगता है ये साफ है कि जो जनाधार मिला था 2019 में वो भाजपा और शिवसेना अलायंस को मिला था। तो इस महाराष्ट्र की जनता ने जो हमारी युति का जो एजेंडा था वो हिंदुत्व का एजेंडा था, हिंदुत्व को वोट किया था, विकास को वोट किया था। लेकिन इलेक्शन होने के बाद उद्धव साहब तो पलट गए, वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ बैठ गए। तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जैसे नेता जिन्हें ये पसंद नहीं आया कि हम लड़े तो एक लड़े थे और बाद में चुनकर आने के बाद हम दूसरी पार्टी में कैसे जाए, और जिन्होंने आज तक सावरकर जी का अपमान किया, हिंदुत्व को, जिनको हिंदुत्व कहने में मुझे लगता है कि शर्म आती है, ऐसे लोगों के साथ हमारे नेता बैठे। तो एकनाथ शिंदे जैसे नेता है ना, उन्होंने बगावत कर दी कि ये हमें नहीं पसंद। तो ये हमारा कोई कसूर नहीं ना, हमने थोड़ी बोला है। वो खुद मुझे लगता है कि स्वाभिमानी नेता है, वो एक शिवसैनिक है, बाला साहब के विचार आगे लेके जाने वाले नेता है। तो उन्हें नहीं पसंद आया, उनके साथ उनकी टीम बाहर निकल पड़ी। उसमें बीजेपी का क्या दोष है? लेकिन हम हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं, हमारा उनका एजेंडा है कि तो हमारे साथ आ गए, हम क्यों नहीं ले। और ये एनसीपी का भी वैसा ही है। अगर उनको लगता है कि इस देश की प्रगति मोदी जी के नेतृत्व में होने वाली है, उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास किया, काम पे विश्वास किया और हमारे साथ आए, तो हमने उस पर उनको गठबंधन में लिया। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि हमने कोई रोल किया है। वहां उनकी बनती नहीं थी, वहां उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगता था कि महाराष्ट्र की अगर प्रगति करनी है तो मोदी जी के साथ जाना, ये अजीत दादा को लगा। तो मुझे लगता है कि गलत बात है। और ये ऐसा चल रहा है, देखो ये ऐसे वो लोग कहेंगे, लेकिन आज क्या चल रहा है? आज हमारी बीजेपी, आज हमारी शरद पवार जी की पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर रोज नए नए लोगों को ले रहे हैं ना हमारे से। हमारे कितने नेता जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि किया तो उन्होंने है, और हमने तो जो साथ में आने चाहते थे उनको हमारे साथ में लिया, हमने कुछ नहीं किया। पोलराइजेशन पर आपका क्या मुद्दा है? क्योंकि अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि कुछ 14 सीटें थी लोकसभा में जहां वोट जिहाद हुआ और एमवीए को फायदा हुआ। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी मेरे ख्याल से फिर कह रहे हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। तो इस तरह के बयानों पर और ओवैसी ने जो कहा उस पर आपका क्या जवाब है? नहीं, ओवैसी जो कहते हैं तो हर बार तो हमें लगता है कि वो इस राष्ट्र की एकता पे, इस राष्ट्र की संघ भावना पे, तो मुझे लगता है कि हर बार उनके कहने से कुछ ना कुछ परिणाम होता है और वो अच्छा नहीं है देश के लिए। हमारी एकता टूटे या जाति जाति में दंगे हो, फसाद हो, मुझे लगता है ऐसे बयान नहीं करने चाहिए। एक पॉलिटिकल लीडर के नाते आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए। हमने तो पहले से कहा है कि हमारा विश्वास जो है वो विकास पर है, हमारे कामों पर है, और हम जनता को वही बता रहे हैं ना कि हमारा विकास है और हम विकास कर रहे हैं। जो सामने रखा है 10 साल का सर्टिफिकेट, हमने हमारा रिपोर्ट कार्ड रखा है, उस पर जनता हमारे साथ है। आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे लगता है अभी एग्जिट पोल वाले तो डर गए, हरियाणा जो हो रहा है उसके बाद कोई भी अनुमान नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन आप एक बीजेपी के नेता और यूनियन मिनिस्टर होने के नाते महाराष्ट्र में बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं? मुझे लगता है कि हम अलायंस करके लड़ रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो आज हमारे जो साथी, हम 3 जो पार्टीज है गठबंधन में, और उसके साथ जो हमारे कुछ इंडिपेंडेंस एमएलए हमारे साथ, तो 218 तक आज ही हमारा फिगर है। मुझे नहीं लगता उसे कमाएंगे हम। और मुख्यमंत्री किसका होगा? महायुति का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू योर पार्टी। थैंक यू सो मच। For both sides, this election presents a more complex picture, with the NCP divided between the Sharad Pawar and Ajit Pawar factions, and both are striving to consolidate power and reclaim influence in the region. The Sharad Pawar faction has already poached leaders from the BJP and the rival NCP faction. For the Mahayuti, their senior-most leaders, including the Prime Minister himself, is pulling out all the stops to boo voters of Western Maharashtra. But does this resonate on ground? We are in Pune today. This is the cultural and the educational hub in the state of Maharashtra, where it's a tough battle between the Mahayuti and the Mahavikas Aghadi. And in fact, let me quickly tell you about the number of seats. There are 4 Lok Sabha seats in the Pune district and 21 assembly constituencies that come under those Lok Sabha seats. Around 303 candidates. That tells you that there are multiple candidates on every seat, and it's going to be a multi-cornered fight, according to many. Let's speak to some of the people who are joining us on the broadcast from
across the political parties in Pune, and let's take their view on what's happening here on ground as far as the 21 assembly constituencies are concerned. Let me introduce you to the guests who are with us here. We are joined by Mr. Amogh Dhamale. He is the leader of the NCP Sharad Pawar faction. Right next to him is Sunil Shinde, leader of the Congress. You have Sanjay More, City Chief, Shiv Sena UBT. You have Rupali Patil, spokesperson of the NCP, Ajit Pawar, and Ali Daruwala, leader of the BJP. Let me begin with you, Mr. Amogh. एक बात बताइए, 303 कैंडिडेट्स हैं और 21 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज, क्या ये मल्टी कॉर्नर फाइट है जैसा सब लोग कह रहे हैं, या सीधी टक्कर है, पवार वर्सेस पवार होगा? क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो स्टेट की जो पार्टी है, जैसे एनसीपी शरद पवार है, ये लड़ाई बीजेपी के साथ ही है। जिस तरह गए कुछ सालों में बीजेपी ने यहाँ पे गंदा पॉलिटिक्स किया है, इसके लिए पूरा पुणे शहर हैरान हो गए हैं। बीजेपी ने पुणे को बर्बाद किया है क्या? या दे हैव नॉट डन एनी डेवलपमेंट इन लास्ट 2-4 years. पास्ट फ्रॉम माई बर्थ वी आर स्टेइंग हियर। बहुत सी डेवलपमेंट 2014 से पहले ही हुई है। 2014 के बाद जो डेवलपमेंट हुई है वो सिर्फ गंदी राजनीति हुई है यहाँ पे, और पार्टी फोड़ना, पार्टी भी डिवाइड करना, स्प्लिट करना और झगड़े लगाना, यही डेवलपमेंट है। और बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, तो मैं जल्दी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ मिस्टर दारूवाला से। मिस्टर अमोघ इज सेइंग कि आप लोग जो है गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 2014 तक सारा डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ नहीं है। बिल्कुल, ये झूठ बोलो, डंके के चोट पे बोलो और रट के बोलो, ये उनका राजनीति का काम है। बट स्वाति, इफ यू जस्ट move around in Pune, the metro, the roads, the signals, the population, the growth, the hotels, the industry, the restaurants and even the theaters are full. यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। ये डेवलपमेंट 2014 के बाद में अगर हुआ तो इतनी उन्नति आप कहाँ से दिख रही है? और तोड़ने की राजनीति हमने तोड़ा नहीं, उनके नेताओं को लगा अगर ये मोदी जी का हाथ बरकत करेंगे, if we join मोदी जी and we jump into the bandwagon, is only then we will survive. So whatever you see, हमने किसी को तोड़ा नहीं, हम किसी के घर पे गए नहीं बुलाने के लिए। ये सब जो आए हैं, all these people who have joined, they have only joined for one single reason, that is विकास। Okay, let me ask Rupali about it. जरूरी है कि ड्रगिस्ट बढ़ चुके हैं, टेररिस्ट बढ़ चुके हैं पुणे में। पुणे पहले ऐसा नहीं था, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन किस बारे में? कोयता गैंग, ड्रगिस्ट, टेररिस्ट, ये बोलने वाले कोई नहीं यहाँ पे पुणे में। पुणे ऐसा बिल्कुल शांत पुणे था। ये पुणे शहर क्राइम रेट बढ़ गया बीजेपी और शिवसेना यूबीटी नहीं, शिवसेना शिंदे सेना के अंडर। कंफ्यूजन देखिए कितना है, कौन सी शिवसेना है? नहीं, शिवसेना ये दूसरी शिवसेना नहीं, ये एक ही शिवसेना है यहाँ पे। ये फ्रॉम एनसीपी अजित पवार। नहीं, मैं दोनों फैक्शन ऑफ शिवसेना की बात कर रही हूँ। एनसीपी के भी दो फैक्शन है, और मेरा पॉइंट ये था कि कंफ्यूजन क्या वोटर्स के माइंड में भी है इसको लेकर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इतनी पार्टी ये बीजेपी ने बनाई हुई है, खुद की राजनीति करने के लिए सब पार्टी को तोड़ा है। कोई भी पार्टी रखी नहीं आज तक इन्होंने। ऐसा पहले राजनीति ये पहले कभी नहीं थी पूरे देश में। पूरे देश में, महाराष्ट्र में, पुणे में सब राजनीति के लोगों को तोड़ फोड़ के अपने पास में लिया है। अभी किधर है? शिंदे गढ़ का है, अजीत दादा पवार गढ़ का है, ओनली बीजेपी दिखती है। सिर्फ बीजेपी दिखती है, आप लोग दिखते नहीं। ये इनका देखने का नजरिया है। देखो, पॉलिटिक्स में सब जायज है, जैसे लव वॉर में सब जायज है, वैसे पॉलिटिक्स में सब जायज है। और ये बोल रहे हैं कि क्राइम रेट का, आपने पहले से ही इंट्रोडक्शन करते हुए समय बोल दिया कि पुणे ये राज सांस्कृतिक और पुणे विद्येचं माहेरघर आहे, असं आप आपने बात किया था। तो ये पुणे में बहुत बाहर वाले लोग आए हुए। ये जो ड्रग्स के बात कर रहे, ये कोरेगांव पार्क का जो एरिया है, वहाँ पे ये सब बाहर वाले बच्चे लोग आए हुए, बाहर के अदर जो कास्ट के लोग हैं, अदर कल्चर के लोग हैं, वो सभी आए हुए हैं। और ये ग्लोबलाइजेशन जब होता था तो उस हिसाब से होटलिंग रहेगा। वहाँ पे जो अनलीगली एक्टिविटीज है, पुणे पुलिस ने कंट्रोल किया, मगर लेकिन भले आउटसाइडर्स आए हों, लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस के और गवर्नमेंट के हाथ में। वही मुद्दे पे आ रहे। जब ये घटना घड़ी, कोई तो गवर्नमेंट नहीं बोलेगा ये ले भाई ड्रग्स ले मस्त मजा कर ले। जब वो गुनाह सामने आता है, रजिस्टर होता है, उसके बाद ही पुलिस या सरकार एक्शन लेती है। और वो पुलिस ने और सरकार ने एक्शन तुरंत ले लिए। मगर हमारे जो विरोधक है वो खाली कोई भी एक मसला लेके डेवलपमेंट पे बात नहीं करेंगे। अभी ठीक है, नशे में वो जो भी ड्रग्स, पुणे पोर्शा केस, वहाँ पे वो 2 बच्चे वहाँ पे सडनली एक्सीडेंटली गए, वो बहुत दुख की घटना है, मगर ये दुर्भाग्य की घटना है। मगर ये लोगों ने मदद नहीं की। उसका जो पुणे में घड़ा है, जो घड़ चुका है, उसके ऊपर उन्होंने सोल्यूशन नहीं निकाला।
भले हम अलग अलग पक्ष में हैं, मगर साथ में अपना कांग्रेस भी जवाब देना चाहता है। एक मिनट, कांग्रेस को भी जवाब देना। पुणे की बात कर रही है, पुणे का डेवलपमेंट किसने किया? पुणे के अंदर कांग्रेस ने MIDC लाया, हिंजोड़ी में IT पार्क किया, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कांग्रेस ने यहाँ पे बनाया। उसके बाद ये बाहर अंदर सब लोग पुणे में आने लगे, पॉपुलेशन बढ़ा। अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो उनको सुरक्षित देना, जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं उन्होंने देना चाहिए। कोई गवर्नमेंट की सुरक्षित यहाँ पे नहीं है, महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है, सरेआम रास्ते पे खून हो रहे हैं यहाँ पे। कभी ये पहले पुणे में कभी हुआ नहीं था। ये कल्चरल सिटी है, पूरा बर्बाद करने का काम इन लोगों ने। वो रूपाली जी बोल रही है कि आउटसाइडर्स आए, आउटसाइडर्स की वजह। ये कौन इनका वही राजनीति है, तोड़ो जोड़ो और करो। अब आउटसाइडर हो कोई, कहाँ से? ये बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से लोग आए, ये महाराष्ट्र के लोग हैं, यहाँ पे आते हैं नौकरी के ढूंढने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप किया। स्टेट के लोग हैं, महाराष्ट्र से भी होंगे मगर अदर स्टेट के भी है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया इसी वजह से तो 2014 को मोदी को वोट दिया ना लोगों ने। ये क्यों नहीं ये सोचते? चुनाव का नतीजा चाहे जो भी रहे, अजीत पवार अभी महायुति के साथ ही रहेंगे। महायुति के साथ है, महायुति के साथ में रह गए। लाड़की बहन योजना, रोज युवक को समुपदेशन शिष्यवृत्ति, बस से मुफ्त प्रवास, ये सब किया हुआ है। ये लोगों ने क्या किया डेवलपमेंट का वो तो बताएं। बीजेपी अगर जीतती है तो गड़बड़ी, अगर बीजेपी जीतती है तो गड़बड़ी ये जो है ना गड़बड़ी, EVM घोटाला, ये सब हारने के लक्षण। अभी से आप बोलना शुरू कर दो, इसका मतलब 23 तारीख को हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये तो देखना पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार किसकी बनेगी। बट द बैटल इज जस्ट इंटेंसिफाइंग एंड द डिबेट इज हीटिंग अप इन पुणे where there are 21 assembly constituencies and you heard all the political parties claiming that they are going to win. It remains to be seen how the voters in Pune are going to vote on the issues, on the multiple developments that have taken place in the political scenario of Maharashtra.